Hello students, myself Professor S.P. Singla from Singla classes. Today we will take another topic, plus 2 physics, current electricity, that is electric measurements. In this we have, first of all, we have Kirchhoff's laws. So what is the need of Kirchhoff's laws in complex electrical circuits? Complex electrical circuits, current and voltages cannot be found out by using simple relation. Simple relation V is equal to IR and series and parallel combinations of resistors. So there are circuits where series and parallel combination of resistors cannot be used. It is not possible to reduce the circuit. In those cases, in those complex electrical circuits, we use Kirchhoff's laws. So there are two Kirchhoff's laws. Kirchhoff's first law is, this is called Kirchhoff's first law or junction law or current law or node. This is also called node law. It states that the sum of currents entering any junction in a circuit must be equal to sum of currents leaving that junction. Junction is a point in a circuit where currents are entering and leaving. तो इसके मुताबिक क्या है, सम ऑफ करंट्स एंटरिंग ए जंक्शन. जंक्शन में जितने करंट्स एंटर कर रहे हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू द करंट सम ऑफ करंट्स लीविंग दैट जंक्शन. दैट इज summation in is equal to summation out. Or we can say like this, the algebraic sum of currents meeting at a point means junction in a closed electrical circuit is 0. जो करंट्स की algebraic sum है, what is meant by algebraic sum? The current entering are taken as positive. If we take current entering as positive and current leaving as negative, then the sum of currents with sign, that is algebraic sum of currents, is 0. I have considered here a circuit. This is a junction of current I1 and I3 are entering the junction and I2, I4 and I5 are leaving the junction. According to the law, current entering is equal to current leaving. Current entering is I1 plus I3. So what is I1 plus I3 equal to current leaving I2 plus I4 plus I5. Or if current entering a junction is taken as positive and leaving a junction is taken as negative, then I1 plus I3 or I1 minus I2 plus I3 minus I4 minus I5 is equal to 0. I1 is entering, I2 is leaving negative, I3 is positive, entering, I4 and I4 negative, leaving 0. That is summation I is equal to 0. So this was Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law is based on the law of conservation of charge. This is the basis of Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law जो है, that is based on the law of conservation of charge. That is total charge entering a junction is equal to total charge leaving a junction. तो किसी भी जंक्शन में जितना टोटल चार्ज एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा. That is why current entering a junction is equal to the current leaving a junction. That is why Kirchhoff's first law is based on the law of conservation of charge. Then is Kirchhoff's second law or law of loops or law of voltages. It states that the algebraic sum of product of currents and resistances of any closed part of an electrical circuit. ठीक है, algebraic sum of product of currents and resistances of any closed part of an electrical circuit. किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के कोई भी क्लोज पार्ट में जो करंट्स और रेजिस्टेंसेस के algebraic sum है, algebraic sum means taking direction of current into account, is equal to algebraic sum of EMFs acting in that part of the circuit. वो
उस पार्ट ऑफ सर्किट में जितनी ईएमएफ चेक कर रही हैं उनके अलजेब्राइक सम के इक्वल हो, दैट इज समेशन आई आर मीन्स sum of products of current and resistances algebraic sum is equal to summation E means EMFs, algebraic sum of EMFs, or we can define it like this also, the sum of potential differences across all elements around any closed circuit loop must be zero. किसी भी क्लोज सर्किट और लूप में जितने भी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है उन सब की सम जो है क्लोज पार्ट में क्या होगी, जीरो होगी. इसके लिए हम वी यूज सम साइन कन्वेंशंस. The first sign convention is traverse the loop in any direction clockwise or anti-clockwise. What is meant by traverse? Traverse the loop in any direction. So here I will show you a circuit I have taken. This is a circuit. This is resistance R1, EMF E1. Then these are resistances R3 and R4. Resistance R2. This is EMF battery E2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन द डायरेक्शन ऑफ करंट. कैसे लिया है, ये बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव. तो आउटसाइड द बैटरी करंट इज लाइक दिस, पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड. तो डायरेक्शन ऑफ करंट हियर विल बी लाइक दिस. ये बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव, इसका भी डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी लाइक दिस. तो कुछ करंट इधर से आएगा I1 और इसमें कुछ करंट आएगा. दोनों करंट ऐड होकर कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे. और यहाँ से कुछ करंट इधर चला गया, कुछ इधर चला गया. नाउ आई हैव टेकन, जो ये ब्रांच है इस ब्रांच में करंट है I1 और जो नीचे वाली ब्रांच है इसमें करंट है I2 और इस ब्रांच में करंट है I3. तो व्हाट इज मेंट बाय ट्रैवर्स द लूप इन एनी डायरेक्शन. ट्रैवर्स मींस ऐसे आपको एक एरो ड्रा करना, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग. यू कैन ड्रॉ इट क्लॉकवाइज और यू कैन ड्रॉ इट एंटी क्लॉकवाइज इन एनी डायरेक्शन. इफ ए रजिस्टर इज ट्रैवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस जो है दैट इज ट्रैवर्स, जिस डायरेक्शन में आपने डायरेक्शन लगाई है उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस आता है, उस डायरेक्शन करंट सेम है, देन देयर प्रोडक्ट इज टेकन एज नेगेटिव माइनस IR. जैसे ये दोनों, जैसे रेजिस्टेंस R4 है, इसमें करंट की डायरेक्शन सेम है, जो मैंने ट्रैवर्स की है वो सेम है, तो दिस इज टेकन एज माइनस I3 R4. ठीक है. अब ऐसे इसको मैंने ऐसे ट्रैवर्स किया है, ये R1 है, इसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसमें मैं लूंगा माइनस I1 R1. ठीक है. तो इंसिडेंटली इसमें भी करंट की डायरेक्शन उलट है, मैंने ट्रैवर्स ऐसे किया है और करंट ऐसे है, तो आई विल टेक प्लस I2 R2. If a resistor is traversed in a direction opposite to the current, the change in potential across the resistor is plus IR. जैसे मैंने बताया, अगर अपोजिट डायरेक्शन जिस डायरेक्शन ट्रैवर्स किया उससे अपोजिट है तो उसमें करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को लगाएंगे पॉजिटिव. If source of EMF is reversed in the direction of EMF, if source of EMF is reversed in the direction of EMF, that is negative to positive. अब मैंने इसको ऐसे ट्रैवर्स किया है, सोर्स ऑफ EMF नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है. नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में हम उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं. देन बैटरी ऑफ EMF इसको लेंगे प्लस. इफ द सोर्स ऑफ EMF इज ट्रैवर्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू द EMF, अगर EMF के अपोजिट ट्रैवर्स होगा दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जैसे इसमें है पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल, देन इट इज EMF is taken as negative. It will be more clear from here. Now consider electric circuit as shown in figure. This is I have already discussed the circuit. Applying loop law to closed loop ABCDA. तो ABCDA this is this direction. इसमें लूप लॉ लगाएंगे. लूप लॉ लगाएंगे, हमने कहा ABCDA. तो लेट अस टेक here we are traversing it in the direction of current, then product of I1 R1 is negative. In this branch it is again traversed, current is in the direction of traversing, तो इसमें करंट इज I3 एंड दो रेजिस्टेंस है R3 एंड R4, माइनस I3 इंटू R3 प्लस R4. एंड वाइल ट्रेवर्सिंग नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी कम्स, अगर नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी आ जाए तो प्लस, नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी आ जाए तो प्लस E1 आता है. अगर पॉजिटिव पोल आ जाए ट्रेवर्सिंग डायरेक्शन में तो माइनस आएगा. ठीक है. एक बार फिर बता रहा हूँ, हम A टू B जाएंगे. पहले A टू B हमने लिया था ABCDA. A टू B जाएंगे तो नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी आ गया तो प्लस E1.
उसका यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ जिस डायरेक्शन में ट्रेवर्स किया है करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये आएगा I3 इंटू R3 प्लस R4 बट विथ ए नेगेटिव साइन, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और ट्रेवर्सिंग की डायरेक्शन सेम है। देन दिस, इसमें भी करंट की डायरेक्शन और ट्रेवर्सिंग की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस I1 R1। देन दिस टेक दिस लूप, अप्लाइंग लूप लॉ टू द क्लोज लूप DCEFD। तो इसमें पहले DC ले लो। इसमें क्या है, हमने उसके ट्रेवर्स किया है क्लॉकवाइज बट करंट इज अपोजिट, तो वी विल टेक R एंड I की प्रोडक्ट पॉजिटिव, I3 इंटू R3 प्लस R4 प्लस here also we have traversed is clockwise, it is current is anti-clockwise, plus I2 R2। now बैटरी का पॉजिटिव पोल आ गया, अगर पॉजिटिव पोल आ गया तो माइनस E2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज यूज्ड इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल सॉल्व करके और क्लियर हो जाए। किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो किरचॉफ सेकंड लॉ है या लूप लॉ है, दैट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर क्या है, बेस्ड है। फर्स्ट लॉ वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज is an arrangement of 4 resistances. So this is an arrangement of 4 resistances used for measuring an unknown resistance in terms of 3 known resistance. तो 4 resistances का अरेंजमेंट है जिसमें एक रेजिस्टेंस अननोन है, जिसको हम जो 3 नॉन रेजिस्टेंसेस की टर्म में डिटरमाइन करेंगे। तो इसमें S इज द अननोन रेजिस्टेंस, S is the unknown resistance, and P, Q, R are 3 known resistances, out of which P is a variable resistance। इसके ऊपर एक एरो डाला है, ठीक है। इसमें ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जैसे गैल्वेनोमीटर, एक की है K। तो बिटवीन A एंड C ए बैटरी इज अटैच्ड। A एंड C में एक बैटरी अटैच कर दी गई है। तो इसमें क्या करते हैं, की को क्लोज कर देते हैं और रेजिस्टेंस P को वेरी करते हैं, इस P वैल्यू की रेजिस्टेंस की वेरी करते हैं, सो दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, दैट इज नो करंट फ्लोज फ्रॉम B to D। गैल्वेनोमीटर तभी 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, B to D कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। तो इसको क्या कहते हैं, दिस कंडीशन इज, इन दिस कंडीशन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड स्टेट। तो उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज को हम बैलेंस स्टेट में कहते हैं। व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस स्टेट, then the ratio of P upon Q is equal to R upon S. P upon Q is equal to R upon S. So from here we can find S. S is equal to Q upon P into R, because these are known resistances and this is unknown resistance. Okay, so this was the definition of Wheatstone bridge. Now proof. फॉर प्रूफ, सपोज मैं आपको समझा रहा हूँ करंट कैसे डिटरमाइन करते हैं। पॉजिटिव पोल से करंट शुरू हुआ, टोटल करंट इज I में से I1 करंट फ्लोज इन दिस ब्रांच एंड I2 इन दिस ब्रांच। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, I में से I1 इस तरफ चला गया, सपोज I2 इस तरफ चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके IG जो करंट है गैल्वेनोमीटर में चला गया IG, तो बाकी कितना रह गया, बाकी रह गया I2 माइनस IG, ठीक है। और इस तरफ ये करंट आ गया I1 और एक गैल्वेनोमीटर में से करंट आया I2 IG, ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे आके। तो इस तरफ कितना करंट जाएगा, I1 प्लस IG। अब ये I2 माइनस IG और I1 प्लस IG ऐड हो जाएंगे, IG कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2 किसके बराबर है द्वारा, I के बराबर, ठीक है। तो एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये टोटल करंट I है, इस पॉइंट पे आके करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस तरफ जाएगा, कुछ इस तरफ। सपोज दिस करंट इज I1 एंड दिस इज I2। यहाँ B पॉइंट पे आके IG गोज थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो I2 में से IG इधर चला गया, बाकी रह गया I2 माइनस IG। D पॉइंट पे आके IG इस तरफ से आएगा, I1 इस तरफ से, दोनों ऐड हो जाएंगे, I1 प्लस IG।
इस पॉइंट पे आके I2 माइनस आई जी प्लस I1 माइनस आई जी कैंसिल, I1 प्लस I2 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू आई करंट वापस। तो यहां पे हम लेंगे अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ टू द क्लोज लूप ए डी बी ए। हम ये ए डी बी ए यहां पे किरचॉफ्स सेकंड लॉ लगा, तो हमने इसको ट्रेवर्स किया एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले हम जाएंगे हमने लिया ए डी बी ए, तो ए टू डी जाएंगे पहले। ए टू डी रेजिस्टेंस R1 है, इसमें करंट की डायरेक्शन सेम है जो इसकी है, तो क्या आएगा माइनस I1R। उसके बाद ऐसे जाना है, इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, हम डी टू बी जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन है बी टू डी, तो प्लस आ जाएगा IG इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G। इसमें अपोजिट है B2A आएंगे तो करंट इज अपोजिट, तो ये प्लस आएगी I2P इज इक्वल टू 0। एक बार फिर बता रहा हूँ, A to D current is in the same direction, I1R negative, in this branch current is in the opposite direction, IGG positive, in this branch current is in the opposite direction, तो I2P positive, equation number 1। Now consider second loop, that is applying Kirchhoff's law, second law to the loop BDCB एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले B2D करंट इज सेम डायरेक्शन, B2D जा रहे हैं हम और करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो माइनस IGG। उसके बाद इस ब्रांच में, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट तो D to C हम जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो माइनस S I1 प्लस IG, माइनस I1 प्लस IG इंटू S प्लस। उसके बाद C to B जाएंगे, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, B आर गोइंग फ्रॉम C to B, करंट की डायरेक्शन है B to C, तो प्लस I2 माइनस IG इंटू Q इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। नो व्हेन द बीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो यहाँ पे मैंने बताया था बीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन द बैलेंस स्टेट, बट इज IG इज इक्वल टू 0। IG को 0 करोगे तो इसमें IG को 0 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में अगर IG को 0 पुट करोगे, ये आ जाएगा I1R प्लस I2P इज इक्वल टू 0, और यहाँ से I1 अपॉन I2 की वैल्यू निकाल लो, ये आ गई P अपॉन R। उसके बाद इक्वेशन सेकंड, ये थी इक्वेशन सेकंड, इसमें IG 0 हो गया, तो बाकी क्या रह जाएगा, ब्रैकेट खोल दो, ये IG 0 हो गया, IG यहाँ भी 0 हो गया, IG यहाँ भी 0 हो गया, तो ये आ गया माइनस I1S, यहाँ पे IG 0 हो गया, प्लस I2Q इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी I1 अपॉन I2 निकाल लो, क्या आ गया Q अपॉन S। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 बोथ आर I1 अपॉन I2, इक्वेट कर दो P अपॉन Q और P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, तो इसको रीअरेंज कर लो, तो आ जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो दिस इज कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन bridge. So this was the theory of Wheatstone bridge. Next is slide wire bridge. What is slide wire bridge? Slide wire bridge is a practical form of Wheatstone bridge. तो Wheatstone bridge का अगर एक्सपेरिमेंट करना हो लेबोरेटरी में, that is performed on the slide wire bridge. तो इसकी कंस्ट्रक्शन है, it consists of a wire AC. This is a wire AC ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगानीन 1 मीटर इन लेंथ, 1 मीटर इसकी लेंथ है, ये कॉन्स्टेंटन या मैंगानीन की वायर होती है, और एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ प्रोटेक्शन, इसका एरिया ऑफ प्रोटेक्शन यूनिफॉर्म। द वायर इज फिक्स्ड ऑन ए वुडन बोर्ड पैरेलल टू ए मीटर रोड, वायर को एक वुडन बोर्ड पे मीटर रोड के पैरेलल फिक्स कर दिया जाता है। तो टू थिक कॉपर स्ट्रिप्स बेंड एट राइट एंगल्स, ये दो थिक कॉपर स्ट्रिप्स हैं जो राइट एंगल पे बेंड है, आर फिक्स्ड एट द टू एंड्स ऑफ द वायर। देयर इज अनदर थिक कॉपर स्ट्रिप फिटेड ऑन द बोर्ड सो एज टू प्रोवाइड 2 गैप्स, तो यहां पे 2 गैप्स प्रोवाइड करेंगे बिटवीन द स्ट्रिप्स। अक्रॉस 1 गैप ए रेजिस्टेंस बॉक्स आर, रेजिस्टेंस बॉक्स आर लेबोरेटरी में होता है या नॉन रेजिस्टेंस है, यहां पे अटैच कर देते हैं, एंड थ्रू गैप सेकंड गैप अनदर अननोन रेजिस्टेंस एस इज कनेक्टेड।
ए jockey J. This is a jockey which is called J. Can be slided on the bridge wire. One terminal of sensitive galvanometer is connected to the jockey. तो एक galvanometer का एक टर्मिनल ये jockey, इसको जो एरो टाइप का इसको jockey कहते हैं. And the other terminal of the galvanometer is connected to terminal T. The positive pole of the battery E. A battery is connected here. Its positive pole is connected to the terminal A. And negative terminal of the battery through key K is attached to the C end of the wire. Now it's working. Close the key, इस key को close करो and adjust non resistance box for a suitable resistance R. इसका एक suitable resistance R adjust कर दो. Adjust the position of jockey on the wire. इस jockey को इस वायर पे स्लाइड करो. Say at B. Suppose jockey B पे है. Where galvanometer shows no deflection. ताकि galvanometer में कोई deflection नहीं आ रही. Note the length AB of the wire. AB length note करो. Suppose AB length is L. तो BC length कितनी आ जाएगी? 100 minus L. इस केस में ब्रिज क्या होता है? When no current is flowing through the galvanometer, the bridge is said to be balanced. Therefore, according to balanced Boltzmann bridge, P upon Q is equal to R upon S. हमने ऊपर पढ़ा ये P upon Q किसके बराबर था? R upon S. अब इस केस में बड़ी स्पीड सपोज करो R इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर. इस वायर का एक यूनिट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस जो है वो R है. तो बड़ी स्पीड P इज रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AB. इस AB लेंथ का रेजिस्टेंस है. व्हाट विल बी दिस इक्वल टू LR. R is resistance per unit length. L is the length of this portion AB. LR. And what is resistance Q? This is resistance Q. Resistance of length BC, that is 100 minus L. This is 100 minus L into R. यानी कि ये जो है एक तरह से रेजिस्टेंस P है, इसमें ये है रेजिस्टेंस Q, ये R और S है. ठीक है, तो P और Q आ गया. तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे? P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S में P और Q की वैल्यू पुट कर देंगे. ये देखिए P की वैल्यू है LR 100 माइनस L इंटू R इज इक्वल टू R अपॉन S. तो यहाँ पे R से R कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो S निकालना है. S इज इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस L अपॉन L इंटू R. L हमें पता है, हमने वहां से रीडिंग ले लेंगे. R भी पता है. S कैन बी डिटरमाइंड, तो S पता लग जाएगा. ठीक है, तो दिस वाज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज.